Yeah. Welcome to DR TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to Dr. Amitabh Banerjee जी. नमस्कार जी। भीष्म है हमारे सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन, लेकिन क्या हो रहा है देश में और दुनिया की बाद में बात करेंगे। हम हमारी राष्ट्र हमारी देश की बात करते हैं। और एक कीमती जान, अनदर प्रेशियस लाइफ गॉन बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। सो मेनी प्रेशियस लाइफ्स, youngsters, middle aged, they are dying post COVID 19. Prove us wrong, Mr. Modi, Amit Shah, and all the political parties, including Congress and everyone, and all the chief ministers. We welcome to prove us wrong. Why so many youngsters are dying post COVID 19 treatment and vaccinations? This is the discussion. Another life, because we are picking up all the evidences from the social media itself. Neither myself nor Amitabh Banerjee, we don't have any agenda to do any show except the larger public interest and to disseminate information as per rule of law, constitution, invoking evidential act with no enmity against individuals, nor animosity against parties or organizations. I always give my number also, 9440465339. Anyone from wherever, whichever part of the world, we are ready to connect and you can differ and discuss, provided it is as per rule of law, constitution, invoking evidential act. That is what the truth is all about. Now I'll take a forward from Amitabh Banerjee ji. I've shared so many videos. These are there on the public domain. And whatever Amitabh Banerjee has done in regarding to exposing vaccines, before vaccination, after vaccination, cases and deaths, worldometer, all evidences are there registered. Now even you have seen Australian senator. Now what we said, America, Robert Kennedy and Donald Trump took a decision to move away from World Health Organization, and his own speech to the World Health Organization during that pandemic agreement, he has exposed Kennedy. He has directly named World Health Organization an unscientific world supported by China and all that, and Bill Gates behind. But why Prime Minister Modi, Amit Shah, Modi government still aping, still supporting Bill Gates and World Health Organization at the cost of public health of India? Why all political parties are keeping quiet? Why there is no discussion from panchayat to parliament? This is a big puzzle. Life is important or any other issues are important? When you survive only, other things matter. Sir, please. हाँ, नमस्कार जी। ये एक्चुअली हमारे देश में नहीं, पूरे ग्लोबली हो रहा है। ये जो फिनोमेना है, इंक्रीज मोर्टेलिटी फ्रॉम बेसलाइन इन नंबर ऑफ कंट्रीज। यूएसए में है, इंश्योरेंस डेटा है। इंश्योरेंस डेटा इंडिया से भी बता रहे हैं कुछ एक्सेस डेथ्स हुए हैं। इंश्योरेंस डेटा अमेरिका से बहुत क्लियर है, 80% एक्सेस डेथ्स हुए हैं अमंग दी 20 to 44 ईयर्स एज ग्रुप, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है, यंग पीपल है। ऑस्ट्रेलिया का डेटा है, फ्रॉम बिग डेटा है कि आफ्टर द रोल आउट 17 to 20% सडन कार्डियक इवेंट्स बढ़ गए यंग पीपल में। और ऑस्ट्रेलिया में तो कोविड इंसिडेंस इतना नहीं हुआ था, वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वगैरह किया था। तो आप जो कहते हैं कि ये कोविड का भी इफेक्ट हो सकता, ऑस्ट्रेलिया से पता चलता है कि ये कोविड का इफेक्ट होने से पहले ही ऐसे होते हैं, क्योंकि उनके कोविड बहुत कंट्रोल किए थे उन्होंने। और एक सबसे रिसेंट स्टडी एक आया है, अभी जापान से एक स्टडी आया है जो कि काफ़ी चिंताजनक है। 3 लोगों ने, एक सीनियर प्रोफेसर है टोक्यो यूनिवर्सिटी के, उनका नाम है प्रोफेसर मुराकामी, ऐसा नाम है, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जैसे रेड्डी साहब है ऐसे वहाँ भी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। उन्होंने 3 लोगों ने मिलके, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का नाम है मसाको गनाहा, जापानीज नेम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काजुहिरो हारागुची, और प्रोफेसर, एमिनेंट प्रोफेसर डॉक्टर यासुफुमी मुराकामी। ये आप नेट में देख सकते हैं। 18 मिलियन का जो डेटाबेस है,
जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन का डेटाबेस उनके पास भी है जापान में, और 18 मिलियन का डेटाबेस उन्होंने वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड, जो कि एक्चुअल तरीके से जैसा करना चाहिए वैसे उन्होंने फॉलो अप किया है। और इन्होंने डेटा रिलीज किया है। इन्होंने कहा है कि 90 to 120 डेज आफ्टर द जैब देर इज अ स्पाइक ऑफ सडन डेथ्स इन द वैक्सीनेटेड ग्रुप। और ये इन्होंने ये भी बताया है, और जापान में भी गवर्नमेंट डेटा नहीं दे रहा है। ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कोई रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई एथिकल सीनियर प्रोफेसर, ये अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च करके बताए हैं। गवर्नमेंट बॉडीज, ऑल वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉडीज आर ट्राइंग टू कवर, पुट एवरीथिंग बिलो द कारपेट, बिकॉज ऑल इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत, इतना बड़ा ब्लंडर किया है, इतने लोगों को वैक्सीन जब दिया है। और जापान का भी हमने डेटा बताया था, जब हमने बताया था कि बिफोर वैक्सीनेशन आफ्टर वैक्सीनेशन जापान में केसेज ही नहीं हो रहे थे, ना ही डेथ हो रहे थे। बट जितने भी केसेज और डेथ्स हुए हैं वैक्सीन रोल आउट के बाद हुए हैं, पॉपुलेशन लेवल डेटा जो हमने वर्ल्डोमीटर से कंपाइल किया था, वो पब्लिक डोमेन में डेटा है, उससे साफ पता चलता है कि वैक्सीन के बाद केसेस भी बढ़ गए और डेथ्स भी बढ़ गए हैं। और इन्होंने भी 18 मिलियन, मेरे को याद है दिसंबर में एक मैं पैनल डिस्कशन में था 2020 दिसंबर में, जब वैक्सीन रोल आउट हुआ था, आई वाज ऑन इंटरनेशनल पैनल डिस्कशन। वहाँ पे एक जापानीज एक्सपर्ट भी था और यूके के भी एक्सपर्ट थे, दूसरे कंट्रीज के थे। मैंने उस टाइम भी कंपैरेटिव डेटा प्रेजेंट करके जापानीज एक्सपर्ट को मैंने बताया था कि आपको वैक्सीन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपके यहाँ तो केसेस हो ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो वो भी बड़े हैरान हो गए। हमने बोला बिकॉज यू हैव गॉट अ वेरी लीन पॉपुलेशन। आपका जो जापान का आप देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जापान का। जापान का एज प्रोफाइल सबसे ज़्यादा है, वेस्टर्न कंट्रीज से भी ज़्यादा है। दे हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, एंड दे आर द ओबेसिटी रेट, ओवर वेट रेट इज जस्ट 20, एशियन कंट्रीज जैसे 20% है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में 60% है। और उनका जो कोविड का जो केसेज एंड मोर्टेलिटी था 20 टाइम्स लेस था वेस्टर्न कंट्रीज से विदाउट वैक्सीन। बट आफ्टर वैक्सीन रोल आउट उनमें पीक हो गया। तो इसमें मतलब इतना क्लियर डेटा है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई, अभी आप मॉडलिंग करके बताओगे कि वैक्सीन ने इतने लाइफ सेव किए, पर जो एक्चुअल ग्राउंड डेटा बता रहे हैं। और अभी जापान से ही फिर से स्टडी आया है कि, जो कि मैंने पहले 2020 में ही बताया था कि आपके यहाँ केस नहीं हो रहे थे, 2022 में मैंने बताया कि जापान के जितने केसेस हुए हैं और डेथ्स हुए, दिस इज आफ्टर द वैक्सीन रोल आउट, नॉट बिफोर द वैक्सीन रोल आउट। यानी कोविड से न केसेस हो रहे थे ना डेथ्स हो रहे थे जापान में। जापान इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि हाउ लाइफस्टाइल एंड हेल्दी लिविंग कैन प्रिवेंट डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, इवन वायरल डिजीजेस। जापान इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये मैंने डेटा 2022 में पेश किया, मैंने ये डेटा पब्लिश भी किया है, इट इज़ इन द पब्लिक डोमेन। और अभी उन्होंने जाके स्टडी करके बता रहे हैं, जो कि मतलब उसको कंफर्म करता है एक प्रकार से कि जितने भी कुप्रभाव हो रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद ही जापान में हो रहे हैं। तो पूरे गवर्नमेंट को सू करना चाहिए, जापानीज गवर्नमेंट को, कंपनीज को सू करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जितने भी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैं, बिकॉज दे आर पार्टी टू इट, दे डो नॉट वांट टू बिकम अनपॉपुलर टू द पीपल, बिकॉज इतना बड़ा ब्लंडर एक्सेप्ट करना भी इजी नहीं है, गवर्नमेंट साइंटिस्ट को भी ये इजी नहीं है। और हमारे पास तो जापान से भी बड़ा डेटाबेस होना चाहिए। हमारे पास तो, हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, हम डिजिटल इंडिया, हम सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। हमने कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था, तो उसमें आपके पास वैक्सीनेटेड का डेटा है, अनवैक्सीनेटेड का डेटा है, उसको आप पूरा रिट्रीव करके निकालिए। yeah, वैसा नहीं करके घुमा फिरा के एक स्टडी कर रहे हैं जिसको कि कवर अप कर रहे हैं आप। yeah, तो वी शुड देखिए, अगर इफ यू आर सो राइट, इफ द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स आर सो राइट दैट वैक्सीनेशन वाज इफेक्टिव एंड वैक्सीनेशन इज नॉट कॉजिंग एनी डेथ, दे शुड प्रेजेंट द डेटा टू रीएश्योर द पब्लिक कि भाई वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। उसके लिए आप डेटा बताइए ना, ऐसे एक्सपर्ट को लाके नहीं कह सकते कि वैक्सीन इज सेफ, वैक्सीन इज 110% सेफ और दिस एंड दैट। डेटा से बताइए आप। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ, अभी देर इज लॉट ऑफ पैनिक अमंग द पीपल। जितना पैनिक कोविड के टाइम हुआ था, अभी उतना ही पैनिक वैक्सीन के ऊपर हो रहा है कि भाई क्या है। तो अगर गवर्नमेंट इज सर्टेन दैट वैक्सीन इज सेफ, लेट देम गिव द डेटा, जो कि जापान के ज़्यादा बड़ा डेटाबेस है। एंड और अगर इतना ही सेफ होता तो हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगे थे, कोविशील्ड लगा था जो कि एस्ट्राजेनेका है, कंपनी ने खुद क्यों विड्रॉ किया? बिकॉज इट वॉज कॉजिंग ब्लड क्लॉट्स। वैक्सीन
वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट्स हो रहे थे, हार्ट अटैक्स हो रहे थे, स्ट्रोक्स हो रहे थे, सडन डेथ्स हो रहे। और ऑस्ट्रेलिया में भी डेटा है, और इतने यूरोपियन कंट्री में बिलो 40 ईयर्स, बिलो 50 ईयर्स एस्ट्रोजेनेका कोविशील्ड को सस्पेंड कर दिया था, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसको बैन कर दिया था, बिकॉज इट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजेनेका वर मोर इन यंगर पीपल। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर यंग, वी आर अ यंग पॉपुलेशन। और इतना बड़ा ट्रेजेडी है कि यंग पॉपुलेशन वर नॉट एट रिस्क ऑफ कोविड, डाइंग फ्रॉम कोविड। वो जो डेटा ऑलरेडी आ गया था फर्स्ट ईयर में, चाहे फर्स्ट 6 महीने में डेटा आ गया था कि बिलो अप टू द एज ऑफ 69 ईयर्स द मोर्टेलिटी वाज लेस देन 0.05%, 0.05%। और 18, 19, 20, 30, 40 ईयर्स में तो 1 in 1000 भी था, जो कि कोइंसिडेंटल था, कोमोबिडिटी वाले को था। हेल्दी पर्सन में इट वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क। एंड जो वैक्सीन हमने यूज किया, विच द कंपनी हैड टू विड्रॉ, दैट वैक्सीन हैड अ हायर रेट ऑफ एडवर्स इवेंट, सीरियस एडवर्स इन यंगर पीपल। एक तो यंगर पीपल को आपको कोई ये नहीं था रिस्क, और अपने रोल आउट को इसको क्या डेंजरस वैक्सीन अमंग यंगर पीपल। आई मीन डेंजरस इन द सेंस व्हाई इट वाज सस्पेंडेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज। जवाब देना चाहिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को, व्हाई इट वाज नॉट लाइसेंस इन द यूएसए। जो एस्ट्रोजेनेका के ट्रायल्स चालू हुए थे यूएसए में, कोविशील्ड के ट्रायल्स चालू हुए थे, मेरे पास पूरा डेटा है, मेरे पास पूरा ये है। उसमें क्या हो गया, ट्रायल के दौरान ही यंग वुमेन एंड ऑल वर गेटिंग स्ट्रोक्स एंड नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो रहा था, कन्वल्सन आ रहे थे। तो उसमें यूएसए में एस्ट्रोजेनेका को लाइसेंस नहीं दिया, यूरोपियन कंट्रीज में उनको रिस्ट्रिक्ट यूज कर दिया, मास रोल आउट रोक दिया। और हमारे देश में ऐसा कैसे हो गया भाई? तो अभी तो एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। जापान में भी ऐसा हुआ था, जापान में भी केसेस बढ़ गए थे। तो इट इज़ वेरी वेरी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। एंड या तो कभी कंपेंसेशन देना पड़ेगा फिर लोगों को, वंस द पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स। एंड कई ऐसे केसेस चल रहे हैं कोर्ट में जो कि एडवर्स इवेंट्स के लिए डेथ हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय ऑटोप्सी। और अभी सबसे लेटेस्ट तो 74% डेथ्स ड्यू टू मायोकार्डाइटिस आर ड्यू टू वैक्सीन रिलेटेड। ये सीनेट हियरिंग में अंडर ओथ टेस्टिमनी दिया है लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर मैकलो, यूएसए में अंडर लीडिंग। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसे हो रहे हैं हियरिंग्स? हमारे यहाँ ऐसे एविडेंस क्यों नहीं देखा जा रहा है? हमारे यहाँ पोस्टमार्टम्स क्यों नहीं हो रहे? हमारे ऑटोप्सी क्यों नहीं हो रहे? स्पेशलाइज ऑटोप्सी क्यों नहीं हो रहे? तभी हम साइंस को हम ट्रस्ट होगा। अभी पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट इन साइंस, दिस इज अ ट्रेजेडी। अगर ये सब करेंगे, ठीक है गलती हो गया, अगर ये सब करेंगे, हियरिंग्स करेंगे, एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, डेटा रिलीज करेंगे वैक्सीन कोविन प्लेटफॉर्म से, और पोस्टमार्टम करेंगे, वॉट एवर द रिजल्ट, जो विक्टम्स है उनको कंपनसेशन दीजिए, उनको पूरा डिजर्व कंपनसेशन। यंग डेथ, अननेचुरल डेथ, सडन डेथ दे शुड गिव, एंड देन ओनली पीपल विल हैव ट्रस्ट इन साइंस। तो अभी ट्रस्ट इन साइंस चला जाने से हमको फिर मिडिल एजेस आ जाएगा, फिर वो ब्लैक मैजिक आ जाएगा, फिर काला जादू आ जाएगा, कोई भी खड़ा हो जाएगा तेल पानी ये लेके कि हाँ। मॉडर्न मेडिसिन से लोग अनफॉर्चुनेटली जो एडवांसेस किए मॉडर्न मेडिसिन, वो सब पीछे चला जाएगा अगर पीपल लूज ट्रस्ट इन मॉडर्न मेडिसिन। Yeah, that's a wonderful point, and I will add to that. What happened to 72nd Parliament Joint Parliament Committee report, Mr. Modi, Amit Shah? Why Congress Rahul Gandhi is silent? Public Health Foundation of India, UPA just opened the window, and Modi ji has opened the doors and everything. And during his period as Chief Minister, Mr. Modi, that 72nd Parliament Committee report, JPC report, on those vaccines which you have experimented when you were Chief Minister of Gujarat, and here, unfortunately, Y.S. Rajshekar Reddy was the Congress Chief Minister. How many Girijan girls have died because of your association with Bill Gates, Melinda and Bill Gates Foundation, Public Health Foundation of India? Since then, the public health, which should have been under the control of government, means elected representatives by the people of India for themselves, these government representatives sold themselves and privatized to Melinda and Bill Gates. This Bill Gates, he is illiterate, he has brought down. Okay, he is successful in one, whatever it is. Now America is coming down heavily on him. Then why Modi and Amit Shah still cling on to Bill Gates and World Health Organization supported by China? You want digital data, facial data and all. You are trying to scare people away by collecting data. And in the same of APAR, the students' data, you want Mr. Modi and Amit Shah to sell them out? And digital data, facial data, why? To see that no one protests, you want to take away the rights. But where is the digital data of COVID-19, Mr. Modi?
Why your photograph was taken away from the certificate signed after vaccination? Why in Supreme Court, in cases wherein you said it is voluntary, we have never enforced? Why Parliament to Panchayat not discussing such a major issue? So many deaths. So let me show you, as usual, the evidences to corroborate what we are saying. It's a shame no politician wants to discuss. It's a real shame. No political party wants to discuss. People are dying. Precious lives are being lost. Still no discussion. Very strange. Again, I am opening sub. क्योंकि पूरा it has been subdued. पूरा hack कर रहे हैं सर जी. What to say? We stand by truth. We have nothing. Now here you see, I will play the first video for Modi and Amit Shah. बैठ के देखो ये जिस तरह बोइंग का क्या हो रहा, अब ये बैठ के देखिए आप, सुनिए about him, and that what he calls philanthrocapitalism, which is you use philanthropy to make yourself rich and you use it strategically, and that's what he's done again and again. He's gotten control of the World Health Organization so that they mandate vaccines all over the world, and the companies that make those vaccines are Gates is, in many of them, the major shareholder. And he did the same thing with the Green Revolution. He got a hold of the regulatory agencies in African countries and forced them to to change the nature of agriculture. You know, there's 20,000 generations of agriculture of people growing crops like sorghum and plantains and yucca and all these plants for subsistence. And he said, no, we're going to transfer them all to these, GMO monocultures of corn. And then we're going to bring in companies that he owns, Kraft, Coca-Cola, McDonald's, these big food companies, processing companies, to buy that. And that's going to be the deal. And then, of course, during COVID, all of that shut down, and you had, there's 30 million Africans now as a direct result of Gates's policy who are now on the edge of starvation. And I know most about Gates, because I've written a book about him, and that what he calls philanthrocapitalism, which is you use philanthropy to make yourself rich, and you use it strategically, and that's what he's done again and again. He's gotten control of the World Health Organization so that they mandate vaccines all over the world, and the companies that make those vaccines are Gates is, in many of them, the major shareholder. And he did the same thing with the Green Revolution. He got a hold of the regulatory agencies in African countries and forced them to change the nature of agriculture. There's 20,000 generations of agriculture of people growing crops like sorghum and plantains and yucca and all these plants for subsistence. And he said, no, we're going to transfer them all to these, GMO monocultures of corn. And then we're going to bring in companies that he owns, Kraft, Coca-Cola, McDonald's, these big food companies, processing companies, to buy that. And that's going to be the deal. And then, of course, during COVID, all of that shut down, and you had, there's 30 million Africans now as a direct result of Gates's policy who are now on the edge of starvation. Sarji, now I just say health is destroying, blame and putting vaccines because he owns vaccines companies, Bill Gates. He's making profits at the cost of health, the death of people, innocent people. And not only that, he is trying to get into the food, agriculture, wherein artificial means of agriculture, those artificial seeds, taking away the food, natural food which we eat, which is being grown. He is destroying that with artificial seeds, chemicalization of agriculture and hybridization of agriculture, destroying your natural health. A best example is Africa, how Africa was forced to be under starvation because of this policy of Bill Gates, Kraft's company, and then his processed food, McDonald's and all. He clearly says
processed food is the enemy. That junk food, we say it is the enemy. So along with vaccines and junk foods, how Bill Gates is trying to kill innocent people across the globe, here is a vital evidence. And he is the HHS, Health and Human Services Secretary of America. Why Bill Gates is not suing him if he's not wrong? And why Modi and Amit Shah are clinging to Bill Gates and World Health Organization? सर जी हिंदी में आप। हाँ, ये देखिए, ये बता रहे हैं कि मिस्टर कैनेडी ने बताया है कि बिल गेट्स तो डब्ल्यूएचओ को पूरा कंट्रोल कर लिया। डब्ल्यूएचओ तो बैंकरप्ट हो गया था, अभी मेजर फंडर बिल गेट्स ही है। और अभी अमेरिका डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया, अर्जेंटीना अलग हो गया। अमेरिका अलग होने से बहुत बड़ा सेटबैक है डब्ल्यूएचओ के फंडिंग में। तो अभी तो बिल गेट्स का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया ऑन द डब्ल्यूएचओ, एंड चाइना का भी होल्ड हो गया डब्ल्यूएचओ में, बिकॉज चाइना वांट्स टू सॉर्ट आउट इज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थ्रू हेल्थ एंड डब्ल्यूएचओ, बिकॉज डब्ल्यूएचओ चाइना बहुत नज़दीक है। और ये तो मिस्टर कैनेडी ने कहा कि बिल गेट्स ने डब्ल्यूएचओ को कब्जा कर लिया। हमारे दुर्भाग्य की बात है कि बिल गेट्स ने इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया में जितने भी हेल्थ बॉडीज़ है, गवर्नमेंट के हेल्थ बॉडीज़ है, चाहे वो आईसीएमआर हो, आईसीएमआर के साथ तो उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, एक प्रकार से लेटर ऑफ इंटेंट भी है फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन। तो अगर आईसीएमआर गवर्नमेंट बॉडी को ही गेट्स के साथ लेटर ऑफ कोलैबोरेशन है, तो फिर वो कैसे बिल गेट्स को रोकेगा वो, या उसके ऊपर जजमेंट पास करेगा, या क्योंकि बहुत फंड्स मिलते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बड़े फंड्स मिलते हैं। और बिल गेट्स ने एक और किया, उसका काफ़ी कुछ, उसका जब ये हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स निकल आए जो कि बिल गेट्स ने उसको स्पॉन्सर किया था, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। काफ़ी जगह पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया गुड़गांव से लेके फिर और कई स्टेट्स में किए हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को बिल गेट्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ऊपर बिल एंड मेलिंडा गेट्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये है। फिर आपका जो सीरम इंस्टीट्यूट है, हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर, उसका बिल गेट्स के साथ, गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप है। भारत बायोटेक का गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप है। तो जितने काउंटर्स हैं हमारे, एक्सटेंशन काउंटर्स, इंडिया इज़ द बिगेस्ट आउटलेट of Bill Gates promotions and vaccine and pharmaceuticals. Or government officials are also having the serious conflicts of interest, because उनको बहुत हाई ग्रांट्स मिल रहे हैं, बिग ग्रांट्स मिल रहे हैं रिसर्च के लिए, उनका कैरियर प्रमोट हो रहा है, लोगों को जॉब मिल रहा है। तो और लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं कल ही एक बहुत ही अच्छे, वेरी एमिनेंट एक्सपर्ट से मेरा इंटरेक्शन हुआ, और वो मेरे को लगा काफ़ी ऑनेस्ट थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर, काफ़ी खुद रिसर्च किया है, एंड बहुत हाई स्टैंडिंग के थे। पर जहाँ बिल गेट्स का बात उन्होंने किया, तो वो भी बिल गेट्स को काफ़ी लगा कि काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं बिल गेट्स को, क्योंकि जो सीरियस साइंटिस्ट होता है उसको ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें मालूम नहीं रहता कि फिलैंथ्रोपी के नाम से लोग, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल डिज़ाइंस है, या ये है। तो हमारे जो ऑनेस्ट साइंटिस्ट भी है, वो भी एक्चुअली वो उनको मालूम नहीं रहता, ये लार्जर पिक्चर नहीं मालूम रहता कि गेट्स का क्या स्ट्रैटेजी है, गेट्स कितना बड़ा चेस का ग्रैंड मास्टर है, मोहरे जैसे इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साइंटिस्ट को मोहरे, चेस के मोहरे होते हैं, शतरंज के मोहरे जैसे इस्तेमाल कर रहा है, और मोहरे को मालूम नहीं होता है कि कौन पीसेस को हिला रहा है। तो अभी तो मैं कहूँगा बिल गेट्स जैसे, हमारे ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम रॉबर्ट क्लाइव ने पूरा प्लंडर कर दिया था कंट्री का, लूटा था रॉबर्ट क्लाइव ने, और ऐसा अभी 21st सेंचुरी का रॉबर्ट क्लाइव इज बिल गेट्स फॉर इंडिया। तो वी आर फेसिंग द सेम डोमिनेशन, और विदाउट और पीपल नोइंग दैट वी आर बीइंग डोमिनेटेड इन द नेम ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज एन एक्सक्यूज, हेल्थ के नाम से हमारे एजुकेशन में भी, इसमें भी, उसमें भी, और काफ़ी इसमें फिर कभी भी पैंडेमिक डिक्लेयर कर देना, कभी भी मैंडेट कर देना। अब डब्ल्यूएचओ ट्रीटी के लिए भी अगर हम साइन कर देंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बिल गेट्स एंड डब्ल्यूएचओ। और एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जितने भी हमारे फॉरेन ग्रांट्स आते हैं हमारे कंट्री में, दिस हैज़ टू कम टू द FCRA, फॉरेन जो ग्रांट का एक एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस है, उसके बिल गेट्स के जो फंडिंग आते हैं वो उसको भी बाईपास किया हुआ, FCRA को बाईपास किया है। गेट्स फाउंडेशन का पैसा FCRA के थ्रू नहीं आता है,
उसको कोई टैक्स नहीं देता है अपने प्रॉफिट में। उसने सीधा रिजर्व बैंक के साथ ये किया है, कोई अरेंजमेंट किया है। अब वो कोई अजीब सा अरेंजमेंट किया है, इसीलिए आप देखा होगा पिछले साल वो आया सीधा रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलता है आके, गेट्स, या अपने पीएम से मिलता है। तो ही इज हैविंग डायरेक्ट एक्सेस टू वेरी वाइटल इंस्टीट्यूशंस। सो इट्स अ मैटर विच शुड बी रेज्ड इन पार्लियामेंट। पर अभी यह है कि पार्लियामेंट में कौन रेज करेगा? आई थिंक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सभी को उसने इन्फ्लुएंस किया हुआ है। इनफैक्ट जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया था, ये मनमोहन सिंह के टाइम इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर हैंड इन ग्लव विद द गेट्स फाउंडेशन। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि पीपल अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। व्हेन पीपल विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस देन ओनली कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होंगे। इसलिए बाकी कंट्रीज में जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खड़े हो रहे हैं, यूके में भी खड़े हुए थे, एंड्रयू ब्रिजिन, उनको साइड ट्रैक कर दिया है। अभी यहाँ पे सीनेट हियरिंग कितना स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ तक कि इन लोग पावर में आ गए। जितने रिपब्लिक्स थे जिन्होंने अपोज किया था गेट्स को, दे हैव कम टू पावर नाउ, रॉबर्ट एफ कैनेडी एंड अदर पीपल, एंड दे हैव हैंड पिक द ऑनेस्ट साइंटिस्ट। तो ये जब ही होगा जब, बिकॉज द पीपल ऑफ अमेरिका एज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, उनको पता चला। और हमारे यहाँ पीपल को पता नहीं चल रहा है, टॉप साइंटिस्ट जो ऑनेस्ट है उनको भी पता नहीं है बिल गेट्स का इन्फ्लुएंस कितना हमारे लिए डिसएडवांटेज है, या हमको एनस्लेव कर रहा है और हमको रियल हेल्थ इश्यूज से डाइवर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ भी अफ्रीका जैसे मेल न्यूट्रिशन है, पॉवर्टी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, हाइजीन सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, फूड एडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, फास्ट फूड का प्रॉब्लम भी आ रहा है हाई प्रेशर मार्केटिंग से। ये सबको नज़रअंदाज करके वो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, हेल्थ एजेंडा। Right. And not only that, for a disease which is 99.99% recovery on its own, and people should understand, when America is trying to expose Bill Gates, why is Modi and Amit Shah, all political parties, including Indian Reserve Bank of India, Indian Parliament, they are associating with Bill Gates to kill innocents? What happened to 1972 Joint Parliament Committee report, Mr. Modi? That should be discussed in the Parliament. Then everything will be exposed. And unfortunately, another one who has just lost her life. Where is it? I'll try to show. This I'll try to show after I show. Yeah. What was, how Bill Gates used officials, that also I'll try to show. And here is COVID vaccine, we don't know. Cardiac arrests in young and healthy people resurface again after Shefali Jariwala's death at 42. But like always, the debate will die before it begins because the government is too busy deleting socialist and secular from constitution instead of thinking about real issues. Your comment, sir. We are losing such precious lives. दीज आर, जैसे अभी कहा ना, दीज आर सिग्नल्स, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेड सिग्नल्स है, दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, पॉज, ऑरेंज। और अभी ये इंडिविजुअल केस मे बी कोइंसिडेंटल, बट व्हेन कंबाइंड विद द पॉपुलेशन लेवल डेटा, और पॉपुलेशन लेवल डेटा बता रहे हैं कि देयर इज इंक्रीज मोर्टेलिटी, ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ गए हैं वैक्सीन रोल आउट के बाद। तो उस डेटा को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, उस डेटा को अच्छे से ऑनेस्टली इम्पार्शियली एनालाइज करना चाहिए। और अभी जैसे मैं बताया कि 85 मिलियन, ये देखिए, ये डेटा भी बता रहे हैं, ये इतना बड़ा डेटा सेट भी बता रहे हैं कि इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक है। ये लास्ट डेटा बता रहे हैं, ये नेमलेस फेसलेस डेटा है। पर जैसे अभी यंग लोगों का डेथ आप बता रहे हैं, जरीवाला का डेथ बता रहे हैं, शेफाली जरीवाला, ऐसे कई यंग डेथ्स हो रहे हैं। दीज आर दी एक्चुअल फेस ऑफ द ट्रेजेडी। और इसको अगेंस्ट दिस अमेरिका का है, अमेरिका का कोविड mRNA वैक्सीन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय बिल गेट्स आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट्स, ही सडनली कम्स आउट। जिस तरह बिल गेट्स अमेरिकन फाइजर हो या उनके वैक्सीन में इन्वेस्ट करता है मच बिफोर, जैसे ही वहां डेथ्स स्टार्ट होते ही उसका प्रॉफिट लेके बाहर आ जाता है। वो सोच रहा है कि बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट जो भी करके इतना कमाई, अगर लोगों को डराओ उनके स्वास्थ्य के ऊपर, काफी पैसा उसको मिल रहा, उसीलिए मजा ले रहा। उसीलिए सब लोग जो बिल गेट्स के साथ है उनको ऐसी इजी वैक्सीन देना चाहिए, और ये जो लैब से जो भी फूड आता है हमारा, वही खिलाना उनको, तभी चेंज आएगा। या सर, आई विल जस्ट प्ले अनदर वन, unfortunate deaths, and this I wanted to be a highly infectious virus. If we get an airborne
pandemic, if we hadn't built ahead of time some structures to deal with this, millions of people could be adversely impacted. But also there will be a surprise outbreak. The next administration, that there's no doubt in anyone's mind that they will be faced with the challenges that their predecessors were faced with. Pandemic prevention and preparedness is going to end up being, whether the administration likes it or not, a priority, a top priority. Trump is now president. When he faces his first major epidemic, as his predecessors have, he will likely project his impulsivity, xenophobia, and cavalier attitude towards facts to over 52 million followers. We may yet again have another pandemic, and it is almost inevitable that we will have another pandemic. Welcome to Event 201. Of what's looking like it will be a severe pandemic. A new coronavirus. Why don't we blow the system up and then say, hey, everyone in the world should get this new vaccine. We haven't given it to anyone yet. But it is not too crazy to think that an outbreak of a novel avian virus could occur in China somewhere. We could get the RNA sequence from that and print those vaccines on a patch and self-administer. Beginning of COVID, we almost knew what was going on. I've been teaching vaccine workshops for our community for, at the time, over a decade. I've been very immersed in the informed consent education. Before, at my early chiropractic career, I actually did go to the World Health Organization representing an international chiropractic organization and heard Bill Gates speak. It was in the wake of H1N1, and he was talking about the global response and how amazing it was, how many deaths we prevented. And in that meeting, he called it the decade of the vaccine, that his mission was to, with all of his money donated, was to eradicate illness from, eradicate infectious illness from the planet. The arrogance, but also the myopia of that conversation and comment is remarkable. So at the beginning of COVID, my message to our community was guard your heart and guard your mind, guard your soul from the endless fear and anxiety that's going to come, right? I didn't know exactly what it was going to look like, but I did know it was going to come. And here we are, right? Here we are 5 years later, and 3 missile sites. And 22 years ago, I was in Iraq. And we don't know exactly all the things that are happening, but we do know that what we're being told isn't the whole truth. And you need to do the same. Guard your mind, guard your heart, guard your soul from that fear and anxiety. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. So if we get... So in 2015, Bill Gates, so I think America will crucify him for this. And now you see how... Needs, then something breaks. So you go to the only medicine that your insurance pays for, which is allopathic MD-directed medicine. The doctors don't know anything about medical nutrition. They don't believe that the body can cure itself, so they give you a drug that manages the problem. The drug, in its working in the human body, also burns through nutrients. So after 6 months or a year, the drug stops working, or they need to increase its potency, or they need to give you a second or a third drug. And then you get worse, and then you need another drug, and then it gets worse, and then you need surgery, and then you get a secondary infection from the surgery, and then you need another drug for that, and then you die. And then your relatives are so grief-stricken that they organize a 5K run on your behalf to come up with a cure for stomach cancer. And who do they give the money to? The people that failed you in the first place. So you run out of the essential nutrients your body needs, then something breaks. So you go to the only medicine that your insurance pays for, which is allopathic MD. This is the vicious cycle. And this I've already shown you. And again, before we say... I know most about Gates, because I've written a book about him, and that what he calls philanthrocapitalism, which is you use philanthropy to make yourself rich, and you use it strategically, and that's what he's done again and again. He's gotten control of the World Health Organization so that they mandate vaccines all over the world, and the companies that make those vaccines are Gates's, in many of them, the major shareholder. And he did the same thing with the Green Revolution. He got a hold of the regulatory agencies in African countries and forced them to take
That is how he is trying to prepare lab meat, lab whatnot, everything. And did I play all the links? Yeah, I think. Yes, Sarji. And before that, again, we'll show COVID vaccine. They say cardiac arrests in young and healthy people resurface again after Shefali Jariwala's death at 42. But like always, the debate will die before it begins because the government is too busy deleting socialist and secular from the constitution instead of thinking about real issues. We have seen so many actors in Karnataka elsewhere dying. Sir, your take from the show. हाँ, अभी देखिए एलोपैथिक मेडिसिन बदनाम क्यों हो रहा है? नॉट बिकॉज एलोपैथिक मेडिसिन इज बैड, because the leadership of allopathic medicine has been taken over by non-doctors. Bill Gates is the biggest allopath and followed by Tedros. अगर टेड्रोस और बिल गेट्स को आप एलोपैथिक, जितने एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स है, लीडिंग डॉक्टर्स है, आईसीएमआर है, अगर बिल गेट्स की बात सुनेंगे और खुद का लीडरशिप नहीं बताएंगे, खुद का मुंह बंद रखेंगे, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल लूजिंग ट्रस्ट इन एलोपैथिक. So allopathic medicine is a very modern medicine. It is used properly. It is being misused. It is not being used to promote health. It is being misused to promote piecemeal solution for profit. वैक्सीन से अभी एक एक वायरस का वैक्सीन निकाल रहा है. अभी तो ऐसे 1000 वायरस निकल जाएंगे अगर ऐसे वायरस ढूंढते रहो. उसके जीनोमिक सर्वेलेंस करेंगे, उनको ग्रांट मिलेंगे, तो वायरोलॉजिस्ट का कैरियर बनेगा, इसका बनेगा, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर for a disease which is 99.99% recovery on its own. हाँ, And you have और seen मैं how ये भी many- पढ़ रहा था कि बिल गेट्स ने आप जानबूझ के अमिताभ बनर्जी साहब, आप एक्सीडेंट्स की बात करें. रिसेंट अहमदाबाद बोइंग 241 killed and young medicos वहां पर more than 80, Yes, more than 350 killed. Accidents are major cause. How to stop accidents? You don't. TB नहीं करेंगे क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है. Yeah. उधर भी इंडस्ट्री इंटरेस्ट है, उधर इंडस्ट्री इंटरेस्ट है. ऑटोमोबाइल्स हैव टू बी सोल्ड इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ एक्सीडेंट्स. Yes. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, ऑटोमोबाइल्स करेंगे. इट इज जस्ट लाइक वैक्सीन. ईच वन इज हैविंग ऑटोमोबाइल, ईच डिजीज इज हैविंग अ वैक्सीन. इफ यू प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू डोंट रिक्वायर ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल का बिजनेस कम हो जाएगा. इफ यू इम्प्रूव हाइजीन, सैनिटेशन, गुड न्यूट्रिशन, यू डोंट रिक्वायर वैक्सीन्स. So it is just the same phenomena कि you don't promote the basic cause, you do not tackle the basic root cause, that is hygiene, sanitation, good food and lifestyle for overall health, which can fight in all infectious diseases. And similarly traffic accidents, 400 young people die daily in India. 400 people daily होते हैं. That is more than the air crash. बट वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो लाइट में नहीं आता है. जैसे कि अभी वैक्सीन एसोसिएटेड डेथ्स हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है. तो इट इज दैट इज द वे एंड दैट इज द हाउ द मीडिया इज मैनिपुलेटेड, द नैरेटिव इज मैनिपुलेटेड, पब्लिक साइकोलॉजी इज मैनिपुलेटेड. एंड एलोपैथी का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि बिल गेट्स इज द डॉक्टर नंबर 1. Dr. Bill Gates, without any proper, not even an engineering degree, not even a medical degree. But he is giving, since 2015, he is making projection models, he is talking on the very high-end epidemics and pandemics. तो हमारे ये अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का सो गया, इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का सो गया. दे हैव सरेंडर्ड देमसेल्व्स. दे हैव, उनको टुकड़े फेंक देता है वो. ही जस्ट थ्रोज द टुकड़ा एंड दे आर हैप्पी विद दोज टुकड़ा. सो इट इज जस्ट लाइक ब्रिटिश कॉलोनी किए थे वो, जितने राजा महाराजा को एक एक सल्तनत दे देते थे, यहाँ आके ग्रांट दे देते हैं साइंटिस्ट को. साइंटिस्ट अपना कैरियर बना लेते हैं, उनका उतना ही हॉराइजन रहता है, उतना उनको मालूम नहीं रहता है कि somebody is exploiting them, and we are being exploited by these people. Yeah, we have been exploited by these people. Mr. Modi and Amit Shah, where is digital media for COVID sufferers before vaccines and after vaccines? How many deaths are happening? Not only deaths, there are many side effects with which their people are suffering. Where is the digital data? Digital data you want for face recognition and for APAR for students. You want to keep them and enslave them and threaten them as and when if someone wants to protest, you use this facial data to arrest and create anarchy in the society. Similarly, students, if any student or their family protests, you have APAR data through which you try to control them, as you have done during COVID-19. How you have not allowed students, including Aam Aadmi Party, that is why that fellow Kejriwal is being cursed now. How many parents were crying in Delhi? Take vaccine or take report and come, only we will allow. The curse of the people is the best way these politicians will have to suffer in the name. My intention is
awareness is created. लोग जानकार हो जाएंगे, नागरिक जानकार हो जाएंगे. We want people to become aware and then they themselves have to take the decision. We are providing you all the information as per science, logic, and which is truthful. The rest is the citizens of India who have to decide. And I only hope from Panchayat to Parliament,